एक्सरसाइज 2 कर ली सबने? चलो एक्सरसाइज 2 में डाउट्स बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। सिक्स और थर्ड और सेवेंथ, एट्थ, फिफ्थ और फोर्थ, 11th, 10th, और बोलो 12th और बचा क्या? सब तो डाउट है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12 सब तो डाउट। और कोई? और कोई डाउट है? नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। A projectile is aimed at a mark which is in the same horizontal plane as the point of projection. It falls 10 meter short. ये कोई प्रोजेक्टाइल है, ये कोई मार्क है। तो प्रोजेक्टाइल को आपने एम किया है विच इज इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इट फॉल्स 10 मीटर शॉर्ट ऑफ द टारगेट व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद एन एलिवेशन ऑफ 75 डिग्री। 75 पे ये 10 मीटर शॉर्ट आपका गिरता है। दिस एंगल इज 75, सो 10 मीटर शॉर्ट आपका गिरता है, यहाँ कहीं आपका गिर रहा है। लेट्स से दिस टोटल डिस्टेंस ऑफ मार्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज x, सो ये यहाँ पे आपका गिर रहा है 10 मीटर शॉर्ट। एंड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये आपका टारगेट से 10 मीटर आपका दूर गिर रहा है। सो जब आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ये आपका 10 मीटर यहाँ गिर रहा है। तो आपसे पूछा है find the correct elevation of projection so that it exactly hit the target. It is given that initial speed is same in each case. So दोनों में स्पीड हम u लेकर सोल्व करेंगे। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मार्क का डिस्टेंस x है, तो आपका जो रेंज होगा पहले केस में 75 डिग्री में, दैट विल बी x - 10,
and range is given as u square sine 2 theta. Theta is 75, so 2 theta is 150 divided by g, that is equal to x minus 10. ठीक है, and sine 150 can be written as half, so that is equal to x minus 10, equation 1. And when it is projected with an angle of elevation 45 degree, आपका ये जो है 10 मीटर आगे जाता है, so r2 is equal to x plus 10, और R2 कितना हो जाएगा, u square sin 2 theta. Theta is 45, so that is sin 90 by g, that is equal to x plus 10. So that is equal to u square by g is equal to x plus 10. Equation number 2. दोनों का ऐड करो, 1 plus 2. So that is equal to u square by 2g plus u square by g, that is equal to 2x. So this implies 3u square by 2g, या 2 को नीचे ले आओ तो 3u square by 4g is equal to x. क्या x ही आपकी रेंज है? क्या x ही रेंज है? और अगर x रेंज है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, मान लो u स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया, तो रेंज मस्ट बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. सो कंपेयर करो दोनों को, सो यू विल गेट साइन 2 थीटा एज 3/4. दिख रहा है? दिख रहा है? So sin inverse करो, so you will get 2 theta is equal to sin inverse 3/4. So theta is equal to half sin inverse 3/4. बोलो सही है? Next question number 4th. A person standing on the top of a cliff 30-meter high has to throw a packet to his friend standing on the ground 40-meter horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 125/3, how short will the packet fall? मैं नहीं करवा रहा हूँ, SC वर्मा में कही है. Question number 5. From the top of a tower of height 40 meter, a ball is projected upwards with a speed of 20 meter per second at an angle 30 degree. When and at what distance from the foot of the tower does the ball hit the ground? ये भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये भी क्लास में डिस्कशन हो चुका है. जो नहीं कर पा रहे हैं वो छोड़ दो. Question number 6. The radius vector of point A relative to the origin varies with time as r vector is equal to at I cap minus bt square j cap, where a and b are positive constants and I and j are unit vectors of x and y axis. Find the equation of point's trajectory. Plot this function. Radius vector दिया हुआ. So radius vector is equal to at I cap minus bt square j cap. So on differentiating you will get velocity. So velocity will be dr by dt. So that is equal to ai cap minus 2bt j cap. ये भी वेक्टर समझ में आएगा? So can I say velocity in x direction is equal to a and velocity in y direction is equal to minus 2bt? Yes or no? तो आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है आपका? y is equal to x tan theta. Tan theta can be written as vy by vx minus gx square upon twice of u square cos square theta, that is ux का square. ये सब पढ़ाया है तुम लोगों को, ठीक है? दिस इज uy, दिस इज ux. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो y इज इक्वल टू, कर लोगे आगे? आगे कर लोगे? मैच कर रहा है क्या आंसर? आंसर मैच कर रहा है?
बोलो आंसर मैच कर रहा है? हाँ तो आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर मैच कर रहा है या आगे करो? देखो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटीज होती हैं वो इनिशियल वाली होती है ये। सो दिस इज यू वाई एंड दिस इज यू एक्स। ठीक है। सो होगा क्या, यू वाई यू एक्स ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, ये वाली, क्या ये यू वाई यू एक्स की वैल्यूज है या ये उस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू है? बोलो। यू एक्स और ये जो हमारा वी एक्स आया डिफ्रेंशिएशन करके ए, और वी वाई आया -2 bt, ये इनिशियल वैल्यूज हैं वेलोसिटी की या उस पॉइंट पे वैल्यूज हैं? पॉइंट पे। पर हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ये जो वेलोसिटीज हैं ये इनिशियल वेलोसिटीज है। अच्छा तुम्हें एक चीज पता है कि x में जो वेलोसिटी उस पॉइंट पे होगी इनिशियली भी वही होगी, मतलब दिस इंप्लाइज यू एक्स भी आपका a होगा। क्या ये सही है? सही है। और अगर आपका वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन उस पॉइंट पे, मतलब उस टाइम पे -2 bt है और इनिशियली मुझे चाहिए क्योंकि मुझे तो यू वाई चाहिए, तो इनिशियली अगर मुझे चाहिए क्या मैं टी को 0 डाल के पुट मतलब निकाल सकता हूँ, मतलब यू वाई 0 दिखेगा मुझे? बोलो। यस। सो दो वैल्यूज मुझे चाहिए थी, यू एक्स और यू वाई, दोनों मुझे मिल गई क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी डिफरेंशिएशन करके आई है ये उस पॉइंट पे वेलोसिटीज आई है। एक्स डायरेक्शन में ए आई है, वाई डायरेक्शन में -2 bt आई है। पर एक्स में जो वेलोसिटी उस पॉइंट पे आई है इनिशियली भी वही होगी क्योंकि एक्स में चेंज नहीं होगी, सो यू एक्स विल बी ए। और वाई में जो वेलोसिटी है वो आई है -2 bt, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मुझे इनिशियली चाहिए तो टी को 0 डाल दो तो यू वाई 0 आ जाएगा। डालो वैल्यूज। सो वाई विल बी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी विल बी एक्स इंटू यू वाई बाई यू एक्स 0 दिखेगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ux का स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। सो फाइनल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। बोलो क्लियर? क्लियर। अच्छा ये आंसर दिया नहीं होगा उसने, चेक करो एक बार। ये आंसर दिया है क्या? ओनली ए स्क्वायर दिया। ये आंसर दिया है उसने, ये जो हमने निकाला y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। पीछे बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिया। बताता हूँ मैं क्यों। देखो अच्छा जो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 आया ये समझ में आया सबको? ये जो इनिशियल वेलोसिटी 0 आया ये समझ में आया? ठीक। और किसी भी टी टाइम पे वाई में वेलोसिटी कितनी आ रही है -2 bt, पर मुझे तो एक चीज पता है कि किसी भी टी टाइम पे वाई में वेलोसिटी होती है यू वाई प्लस ए वाई टी। सही है। तो वी वाई मेरा कितना हो जाएगा, यू वाई वो तो 0 दिख रहा है, ए वाई माइनस जी होता है इंटू टी। पर क्वेश्चन में जो वी वाई गिवन है मुझे वो -2 bt मेरा निकल के आया है। अगर इसको मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से कंपेयर करूं, कैन आई राइट जी एस 2b? डालो जी को 2b। सो y विल बी इक्वल टू माइनस जी, जी विच इज 2b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो क्लियर? क्लियर।
बी पार्ट कर लोगे इसका, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी वी, वी तो मैंने निकाल ही दिया टाइम के साथ। एक्स डायरेक्शन में ए आ रहा है, वाई डायरेक्शन में -2 bt आ रहा है, और एक्सीलरेशन भी आपको निकालना है, और इनका मोड भी निकालना है। मोड तो आप इजीली निकाल सकते हैं, √i के साथ कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के साथ कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ए वेक्टर कितना होगा कोई बता सकता है? ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना होगा? ए वेक्टर कितना होगा? डीवी बाई डी टी सबको पता है, डीवी बाई डी टी होता है। वैल्यू बताओ कितनी आएगी? -2b j cap। So a vector will be dv vector by dt। डिफरेंशिएशन करो तो i के साथ ये जो है, मतलब x की जो वेलोसिटी है वो a है, a मतलब एक कांस्टेंट, सो एक्सीलरेशन हो जाएगी x में 0। y में आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज -2bt, तो उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे दैट विल बी -2b। एक्सीलरेशन सिर्फ j में आएगी, दैट इज -2b j कैप। और मोड मांगा है आपसे तो मॉडुलस विल बी 2b। बोलो क्लियर? Next question number 7th. Question number 7th. A hunter in a valley is trying to shoot a deer on a hill. The distance of deer along his line of sight is 10√181 meters and height of the hill is 90. His gun has a velocity of 100 meter per second. How many meter above the deer should he aim his rifle in order to hit it? हुआ है? हुआ? बस एक का हुआ? अरे हुआ? ठीक। अच्छा, ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है? लास्ट लाइन का मतलब क्या है? हाउ मैनी मीटर्स अबव द डियर शुड ही एम हिज राइफल इन ऑर्डर टू हिट इट? क्या मतलब है इसका? कौन सा डिस्टेंस चाहिए? कौन सा डिस्टेंस चाहिए? h प्लस एक्स। h क्या है, x क्या है? मतलब आपका जो हंटर है वो कहाँ है? ग्राउंड पे है क्या? हंटर कहाँ है? ग्राउंड पे? मतलब हंटर यहाँ कहीं है क्या? और डियर किधर है आपका? यहाँ कहीं। ऐसा है क्या डायग्राम? बोलो। और डियर कहाँ पे है? वो एक क्लिफ पे है, जिस क्लिफ की हाइट आपको दी गई है 90 मीटर, मतलब एक हिल पे है। ऐसा ही है क्या डायग्राम? और उसका जो लाइन ऑफ साइट है, द डिस्टेंस ऑफ डियर अलोंग हिज लाइन ऑफ साइट इज 10√181। 10√181 मतलब ये वाला, दिस डिस्टेंस इज 10√181 मीटर। ऐसा ही है क्या डायग्राम? अच्छा, तो पाइथागोरस से निकालो फटाफट। हंटर का ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा? पाइथागोरस से आएगा √18100 माइनस 8100, 10,000 100 आएगा।
आ रहा है? अच्छा, तो अब सवाल है आपका कि आपको निकालना है उसकी गन की स्पीड दिया 100 मीटर पर सेकेंड, हाउ मैनी मीटर्स अबव द डियर शुड ही एम हिज राइफल इन ऑर्डर टू हिट इट। मेरा अभी भी सवाल वही है, डिस्टेंस कौन सा ये उसने डिस्टेंस मांगा है, हाउ हाई मतलब कौन सा डिस्टेंस, डायग्राम में बताओ कौन सा डिस्टेंस, बताओ। हाउ हाई अबव द डियर मस्ट ही एम, कौन सा डिस्टेंस बोल रहा है वो? गन डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। बाकी जन बताओ। तो हमने तो एक राउंड से ही कैलकुलेशन की है सारी। एच मैक्स पूछा है। बाकी जन बोलो। बाकी जन बोलो। मुझे तो इस लाइन का मतलब ही समझा दो कि हाउ मैनी मीटर्स अबव द डियर शुड ही एम हिज राइफल इन ऑर्डर टू हिट इट। डियर के अबव कितना मीटर बोला है उसने अपना राइफल को वो करे वो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर हंटर एम एंड डियर, मतलब क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी का ये पूछा है उसने, मतलब कुछ ऐसा पूछा है क्या, डियर के ऊपर किस पॉइंट पे वो एम करे अपनी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, तो इनिशियल वेलोसिटी वो कहाँ एम करे ये पूछा है क्या। लेट्स से दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू, ये तो लाइन ऑफ साइट था ना ये ब्लैक से जो बनाया, ऐसा पूछा है क्या कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको कहाँ एम करे, मतलब ये पी पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है, ये डियर से ऊपर कितना है ये चाहिए आपको। आधे लोग बोल रहे हैं ग्राउंड से, ये नहीं पूछा, ये पूछा आपको दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? अच्छा, आधे बोलेंगे सर इसने जो एम किया वो तो डियर के ऊपर एम किया है, तो डियर को जो है वो टकरा सकता है क्या? बोलो, उसने जो वेलोसिटी एम की है अपनी वो डियर के ऊपर की है, क्या डियर को टकरा सकता है? एम वहां पे पी पॉइंट पे किया है पर वहां पे जाएगा थोड़ी, क्या पाथ कुछ तो ऐसा करेगा, बोलो क्या पाथ कुछ तो ऐसा करेगा, ये टेंजेंशियल बन जाएगा। एक मिनट, कुछ तो ऐसा पाथ रहेगा उसका, ऐसा प्रोजेक्टाइल। बोलो समझ में आया? ठीक है, पर एम उसने वहां पे किया पी पॉइंट की तरफ, तो आपको वही पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। चलिए देखिए, अब ध्यान से समझो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये एंगल लगेगा प्रोजेक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा, तो ये थीटा मुझे निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे डियर को हिट करना है तो मुझे वाई भी पता है कितना होना चाहिए, मुझे एक्स भी पता है कितना होना चाहिए। बोलो क्या वाई मस्ट बी 90 एंड एक्स मस्ट बी 100, यस और नो? बोलो क्या वाई मस्ट बी 90 एंड एक्स मस्ट बी 100, सही है? तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करो। So y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. So y is 90, x is 100, tan theta minus g is 10, x square upon x कितना था हमारा, x is 100 ना, so 100 into 100 मतलब 10,000, so into 10,000 अपॉन 2 u कितना दिया हुआ आपको वेलोसिटी 100, so that is also 10,000 into cos square theta। बोलो इक्वेशन सबको क्लियर हुई? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी
बोलो क्लियर। तो दिस विल बिकम 90 इज इक्वल टू 100 टेन थीटा माइनस 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओगे सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पता है सब। सो 5 से पूरा कैंसिल हो रहा है आपका, दिस इज 20 दिस इज 18, सो यू विल गेट 18 प्लस 1 19 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 20 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। सो 10 में क्वाड्रेटिक हो गई और इसके रूट डायरेक्टली दिख रहे हैं मुझे। सो ये आपको दिखेंगे टेन थीटा माइनस 19 इंटू टेन थीटा माइनस 1, दिख रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, दिख रहा है। सो दो रूट्स आपको मिलेंगे, फर्स्ट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब एंगल 45 डिग्री मिलेगा, और सेकंड मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 19। सही है। अब दोनों वैल्यूज लेके सोल्व कर लो। अब ट्रायंगल कंप्लीट करो। ये जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको, मुझे डियर से पी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में। सो आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा ये वाला, ठीक। ये एंगल मेरा या तो 45 डिग्री है या मेरा tan इनवर्स 19 है, दोनों लेके सोल्व करते हैं। एंड दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेट्स से O, और ये जो P पॉइंट था इसकी तरफ एम किया था उसने, पर लगेगा उस पे नहीं, लगेगा डियर पे ही लगेगा आपका। ये U स्पीड थी 100 और डियर यहाँ पे था आपका। बोले डायग्राम क्लियर है सबको? क्या डायग्राम क्लियर है? तो सबसे पहला इक्वेशन आपका ट्रायंगल से बनेगा tan 45 विच इज 1 दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाएगा आपका 90 प्लस एच, दिख रहा है 90 प्लस एच अपॉन एडजेसेंट, वो आपको दिखेगा 100। सो ऑब्वियसली यहाँ से एच सोल्व होकर आएगा 10 मीटर। तो पहला तो पी पॉइंट का डिस्टेंस है 10 मीटर, कब? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, क्योंकि दो एंगल आए ना मेरे। दूसरा जब टेन थीटा 19 होगा तब देखते हैं। सो टेन थीटा, इसको थीटा ही बोल देते हैं, तो एक बार थीटा को मैंने 45 डाला, एक बार टेन इनवर्स डाला, सो दिस इज थीटा। सो सेकंड इक्वेशन बनेगी टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 90 प्लस एच अपॉन एडजेसेंट विच इज 100। सो टेन थीटा कितना दिख रहा है आपको? 19। सो 19 इज इक्वल टू 90 प्लस एच बाय 100। So h is equal to 1900 minus 90 which is 1810 मीटर। बोलो क्लियर। कितने, दोनों आंसर दिए हैं क्या उसने? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्या पूछा था? अच्छा सवाल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई रिपीट। कौन सा वाई रिपीट? कौन सा वाई? भाई तो 90 है ना, डियर को हिट करना है, मतलब इस पॉइंट पे आपका, ये पॉइंट आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है। नहीं रेंज नहीं होगा वो आधा मोशन है ना। रेंज को 100 लिख सकते हो तुम लोग, मतलब रेंज को 100 डाल के, वैल्यूज डाल के कर सकते हो सो। वो आधा मोशन है ना, कंप्लीट मोशन नहीं है वो। मतलब पाथ कुछ ऐसा होगा, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ये देखो एम कहाँ किया, एम डियर पे नहीं किया, ऊपर पी पॉइंट पे एम किया, उसी पी पॉइंट का डिस्टेंस डियर से निकालना था। पर पाथ कैसा होगा? पाथ आपका प्रोजेक्टाइल होने वाला है, यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल पाथ होगा ऐसा, ये ऐसा होगा, और ये यहाँ डियर को हिट करेगा और उसके बाद ऐसा जाना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो आप रेंज 100 यूज नहीं कर सकते। बोलो क्लियर जिसको डाउट था। पर आपको ये पता है, ये जो डियर जहाँ बैठा है वो पॉइंट जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा, तो वही मैंने लाई करवाया। अरे बोलो क्लियर। रेंज क्यों नहीं यूज कर सकते? ऊपर शांतनु क्लियर क्या? तो डियर का तो मुझे पता है ना, इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, सो डियर का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 100 कॉमा 90, क्योंकि x में 100 y में 90 है, उसी को मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे लाई करवाया, क्योंकि वो लाई करना ही चाहिए, तभी तो डियर को हिट करेगा ना।
बोलो क्लियर। पी पॉइंट पाथ पे लाई नहीं कर रहा है, पी पॉइंट की तरफ एम करके उसने गन को फायर किया है, मतलब बुलेट को फायर किया है। बोलो समझा। हिट वो डियर को ही कर रहा है, तो डियर का जो पॉइंट है दैट मस्ट लाई ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना, पी पॉइंट थोड़ी लाई करेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। पी पॉइंट की तरफ तो एम किया उसने। बोलो समझा। तो 10 रूट 181 कौन सा डिस्टेंस दिया है, वो उसकी लाइन ऑफ साइट से डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब वो जो नीचे मैंने ब्लैक से बनाया वो 10 रूट 181, उससे मैंने पाइथागोरस से नीचे वाला डिस्टेंस निकाला। अरे समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है shots fired simultaneously from the top and bottom of a vertical cliff with the elevation alpha and beta respectively strike an object simultaneously at the same point on the ground. If s is the horizontal distance of the object from the cliff, then what is the height of the cliff? Shots fired simultaneously from the top and bottom of a vertical cliff with the elevation alpha and beta respectively strike an object simultaneously at the same point on the ground. If s is the horizontal distance of object, then what is the height? ये हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ। अरे 8 हुआ। चलो देखो, ये आपकी एक क्लिफ है, लेट्स से इसकी हाइट h है, वो मुझे पता नहीं है, वही शायद फाइंड करने को बोला उसने। तो आपने क्या किया, बॉटम से मतलब यहाँ लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, और टॉप मतलब यहाँ लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, यहाँ से आपने शॉट्स फायर किए और वो साइमल्टेनियसली हिट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को विच इज एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम द क्लिफ, मतलब ये डिस्टेंस आपको s दिया एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम क्लियर हुआ, ऐसे दिया है ना, डायग्राम क्लियर हुआ। ठीक, अब शॉट्स कैसे फायर किए हैं, बॉटम से और टॉप दोनों से आपने फायर किए हैं। ठीक, तो बॉटम से मतलब कुछ तो ऐसा, बोलो ये एंगल अल्फा है कि बीटा है? अल्फा है ना शायद, अल्फा दिया है ना, बीटा नहीं, बीटा दिया, अल्फा टॉप से है, ये एंगल बीटा है। ठीक, ये एंगल बीटा है। अच्छा, टॉप से कैसा फायर किया गया होगा, टॉप से कैसा फायर किया गया होगा, बोलो टॉप से कैसा फायर किया गया होगा? ऐसा, ऐसा, बोलो क्या टॉप से ऐसा फायर किया गया होगा? और साइमल्टेनियसली इस ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है। बोलो डायग्राम क्लियर। वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बोलो डायग्राम क्लियर। अच्छा, दोनों स्पीड सेम है या अलग अलग है? मतलब अगर मैं इसकी स्पीड u लेता हूँ वो भी u है क्या? अलग अलग है, पक्का? ठीक, सो लेट्स से दिस इज u1 एंड दिस इज u2। पहले तो यहाँ तक बताओ ये डायग्राम सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, ये डायग्राम सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर, चलिए ठीक। देखो आप ध्यान से, साइमल्टेनियसली हिट कर रहे हैं मतलब दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया, लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे दोनों यहाँ थे आपके, ठीक है, और दोनों t टाइम पे आपके हिट किए इस ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो कुछ इक्वेशंस बनेंगी आपकी, तो उसमें से h निकल के आएगा, और h किसकी टर्म में आना चाहिए, सोच के बताना। क्या u1 u2 की टर्म में h आ सकता है, यस और नो? क्या u1 u2 की टर्म में h आ सकता है? बोलो।
क्या u1 u2 के टर्म में h आ सकता है? अरे बोलोगे u1 u2 के टर्म में h आ सकता है क्या? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? u1 u2 की टर्म में h आ सकता है, हाँ या ना? h किसकी टर्म में आना चाहिए? क्या अल्फा बीटा s इन सब के टर्म में? क्योंकि u1 u2 तो मुझे दिया ही नहीं है, तो मैंने खुद से माना। तो देखो, तो दोनों का अलग अलग मोशन स्टडी करो। तो अगर ये t टाइम पे इसको हिट कर रहा है नीचे वाला, तो t मैं इजिली लिख सकता हूँ 2u साइन थीटा विच इज साइन बीटा बाय g। और s भी मैं इजीली लिख सकता हूँ, s उसका रेंज बनेगा, तो s विल बी u स्क्वायर विच इज u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये दो इक्वेशंस है, शायद इसका कभी यूज हो। सो 1 एंड 2। अब उसके बाद बी का मोशन अगर मैं देखूं, ये तो मैंने ए का मोशन देखा, अगर मैं बी का मोशन देखूं तो बी के लिए आपका टाइम टी जो टाइम इसको टकराने का होगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसका थोड़ा सा अलग इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वो हाइट पे जाके प्रोजेक्ट किया। सो एस वाई उसका बन जाएगा माइनस एच, यू वाई इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन वो आपको दिख रही होगी यू टू साइन अल्फा। ठीक है, सो इक्वेशन यूज करो, सो यू विल गेट एस वाई विच इज माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई विच इज यू टू साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये टी हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाला। ठीक, अच्छा उससे कुछ आएगा क्या? मुझे नहीं लगता उससे कुछ आएगा। माइनस एच इज इक्वल टू यू टू साइन अल्फा, स्मॉल टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2u1 साइन बीटा बाय जी। ठीक, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा 4u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। एक जी से ये गया, सो दिस इज जी। ठीक है, और एक 2 से ये गया, सो ये। आपका माइनस एच थोड़ा सिंप्लीफाई होके आ गया, माइनस एच इज इक्वल टू 2u1 u2 साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस 2u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय जी। बोले यहाँ तक क्लियर? अच्छा, उसका एस एक्स भी मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन वो भी एस होगा उसका बी का। तो एस एक्स की इक्वेशन से बी के लिए क्या मिलेगा? सो दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हाफ ए एक्स टी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, यू एक्स इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन वो आपको दिख रहा होगा यू टू कोस अल्फा इंटू टी, टी तो मैं पहले ही निकाल चुका है, दैट इज 2u1 साइन बीटा बाय जी। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन वो तो एस है, और आरएचएस आपको दिखेगी 2u1 u2 cos अल्फा साइन बीटा बाय जी। बोलो यहाँ तक क्लियर? वही कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, तो माइनस एच हमें निकालने, एच निकालने को बोला था। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, ये जो इक्वेशन है ये आपकी बन जाएगी यहाँ से, माइनस एच इज इक्वल टू 2u1 u2 बाई जी, क्योंकि u1 u2 अननोन है तो उनको हटाना पड़ेगा। सो 2u1 u2 बाई जी मैं हटा सकता हूँ, कहाँ से?
बी के लिए जो मैंने एस एक्स निकाला ये वाला, सो यहाँ से 2u1 u2 बाई जी आपको दिख रहा होगा s अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कितना दिख रहा है ऊपर आपको, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, समझ में आ गया। और सेकेंड टर्म आपको दिखेगी माइनस कितना, ट्वाइस ऑफ u1 स्क्वायर बाय जी, और u1 स्क्वायर बाय जी यहां से दिख रहा है इक्वेशन 2 से, सो u1 स्क्वायर बाय जी इक्वेशन 2 से कितना दिख रहा है, s अपॉन साइन 2 बीटा इनटू साइन स्क्वायर बीटा। ये हो गया h का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, अभी और सिंप्लीफाई हो गए, बोलो यहां तक क्लियर। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं थोड़ा, सो यू विल गेट माइनस एच इज इक्वल टू एस साइन बीटा से साइन बीटा उड़ता हुआ दिख रहा होगा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा आपको दिखेगा टेन अल्फा, तो एस टेन अल्फा, ठीक है, माइनस सेकंड आपको दिखेगा 2s साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन 2 बीटा, वो दिखेगा 2 साइन बीटा कोस बीटा, ठीक, 2 से 2 गया, साइन बीटा से एक साइन बीटा गया, सो यू विल गेट माइनस एच इज इक्वल टू एस टेन अल्फा माइनस एस साइन बीटा बाय कोस बीटा टेन बीटा, माइनस साइन दोनों साइड ले जाओ, यू विल गेट एच इज इक्वल टू एस इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बोलो क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछो, ये कैसे आया वो कैसे आया। बोलो, सबको क्लियर। सबको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th इज a bomber flying upward at an angle 53 degree with vertical releases a bomb at an altitude of 800. The bomb strikes the ground 20 seconds after its release. Find the velocity of bomber at the time of release of bomb, the maximum height attained by the bomb, the horizontal distance traveled by the bomb when it strikes the ground, the velocity of the bomb just when it strikes the ground। हुआ है क्वेश्चन नंबर 9th। देखो, तो ये है आपका ग्राउंड, ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर है आपका बॉम्बर, वो है 800 मीटर ऊपर, और कुछ तो वो यू स्पीड से आपका ट्रेवल कर रहा है ऐसा एट एन एंगल 53 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक, और यहां से उसने बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा। कितने टाइम बाद गिरेगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो स्ट्राइक कर रहा है 20 सेकेंड्स, T0 पे यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक। तो आपको जो जो पूछा है वो निकालना है, यू पूछा है आपसे, है ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉम्ब मतलब ये पूछा है, तो वो सब निकालना है, आराम से हो जाना चाहिए। चलो देखो, तो इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितनी है, u cos 53 बनेगा इस बार, क्योंकि 53 वर्टिकल के साथ है, सो दैट इज 3u/5। इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन u sin 53, दैट इज u 4u/5, ठीक। तो सबसे पहले टाइम कितना है फ्लाइट का, 20 सेकेंड्स, तो sy -800 दिख रहा होगा सबको, बहुत बार कर चुके, uy 3u/5 दिख रहा होगा सबको, यूज करो, सो यू विल गेट sy इज इक्वल टू uy into t which is 20 plus half ay which is -5 क्योंकि ay minus g होगा into t square which is 400, so you will get 5 से गया 4, so -800 is equal to 12u minus 2000,
सो यू विल गेट 1200 इज इक्वल टू 12u। तो इनिशियल स्पीड थी आपकी 100 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर। सो दिस स्पीड comes out to be 100। क्लियर। अच्छा, अब आपसे पूछा है बॉम्ब का मैक्सिमम हाइट बताओ ग्राउंड से, तो ये वाली हाइट निकाल लो, 800 ऐड कर लेना। सो ये उसके प्रोजेक्टाइल मोशन का एच मैक्स होगा, और यहाँ पे आप ओब्लिक वाला रिजल्ट लगा सकते हो। तो एच मैक्स कितना बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, ये इस बार कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। बोलो, क्योंकि एंगल इस बार वर्टिकल के साथ दिया है, क्या कॉस स्क्वायर लिखना सही है। So u square is 100 into 100 cos theta cos 53 is 3/5 cos square हो जाएगा 9/25 अपॉन 2g हो जाएगा 20। so 25 से हो गया आपका 4, 20 से हो गया आपका 5, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 9 180। ठीक, तो ग्राउंड से उसने पूछा है तो 180 प्लस 800 सो दैट इज 980। सो टोटल डिस्टेंस इज 980। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉम्ब बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब ये पूछा है आपसे एस एक्स। एस एक्स तो इजिली आप निकाल सकते हो, दैट इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना दिख रहा है आपको 4u/5, टी कितना था आपका 20, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यू की वैल्यू 100 आई तो 5 से ये गया आपका 20, 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 20 1600 मीटर। बोलो सी पार्ट भी समझा। और लास्ट पार्ट है आपका द वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब जस्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज, तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तब बॉम्ब की वेलोसिटी। तो ये तो इजी है। सो ये होगा आपका वी वेक्टर, और इसके दो कंपोनेंट्स दिखेंगे। एक्स वाला तो आपका सेम रहेगा 4u/5, यू 100 आया मेरा, सो ये हो जाएगा आपका 80। और वाई वाला कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे वाई कंपोनेंट निकालने के लिए। फर्स्ट, so you will get vy is equal to uy plus ayt। uy इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन 60 दिखेगा आपको, ay -10, t कितना है आपका 20 सेकेंड्स, सो दैट इज -140, और माइनस आना चाहिए क्योंकि नीचे दिख रहा है, सो दिस इज 140। ठीक, सो डायरेक्शन किसके साथ निकाला उसने, ऑप्शन उसमें देखो सॉल्यूशन में, मतलब आंसर में, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। डायरेक्शन कोई चेक करो वेलोसिटी वेक्टर का, किसके साथ निकाला उसने, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। चलो मैं वर्टिकल के साथ मान लेता हूँ थीटा। सो यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट जो आपको 80 दिख रहा होगा अपॉन एडजेसेंट जो आपको 140 दिख रहा होगा। सो दिस विल बी tan इनवर्स 4/7 विद वर्टिकल। पता नहीं उसने किसके साथ दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उसने शायद उल्टा दिया, tan इनवर्स 7/4 आंसर दिया उसने। हाँ, तो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ निकाला। क्वेश्चन में बोला है क्या हॉरिजॉन्टल के साथ, नहीं बोला। ठीक है, कर लोगे। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। Question number 10th is a man is traveling on a flat car which is moving up an inclined plane at cos theta is 4/5। cos theta 4/5 मतलब ये जो एंगल होगा आपका ये 37 होगा। इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है,
और मैन जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। He throws a ball towards a stationary hoop located perpendicular to the incline in such a way that the ball moves parallel to the slope of incline while going through the center of the hoop. Hoop का है वो क्वेश्चन में ध्यान से देखो। तो जैसे ही वो हुप से निकला वो आपकी जो वो है बॉल वो पैरेलल हो गई। क्या मतलब है इसका? क्या जो हुप है ये उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा? बोलो। क्या ये जो हुप है आपका ये उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा? यस। अच्छा। और लेट से वाई में जो वेलोसिटी है इसकी वो यू वाई है। अच्छा तुम्हें एक चीज पता है एक्स की वेलोसिटी वो 5 ही लेगा। बोलो ये जो उसने क्या फेंका है, जो भी फेंका है उसने क्या फेंका है, बॉल फेंकी है उसने, क्या वो एक्स की वेलोसिटी बॉल 5 ही लेगी? और वाई में कुछ तो होगी, लेट्स से दैट इज यू वाई। ठीक है। तो पाथ कैसा करेगा वो बॉल? तो वाई की भी वेलोसिटी उसके पास, एक्स की भी वेलोसिटी है, तो कुछ तो नेट वेलोसिटी ऐसी होगी, तो पाथ कुछ तो ऐसा करेगा। और ये जो हुप है ये उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। थोड़ा सा गलत बना है तो एडजस्ट कर लेना। बोलो समझ में आया? तो हुप यहाँ कहीं लगा देता। चलो ये तो हमारे ही हाथ में है ना। ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है मुझे इसके पाथ का, तो हुप यहाँ कहीं है आपका। और जैसे इस हुप से निकला ये इसकी वेलोसिटी पैरेलल होगी। यहीं से मुझे पता चला कि हुप जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि हाईएस्ट पे ही वेलोसिटी पैरेलल बनती है। ये होगा आपका एच मैक्स, हुप का डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। बोलो क्लियर? डायग्राम क्लियर? ठीक। और आपको हुप जो है वो 4 मीटर हाई दिया हुआ है, मतलब एच मैक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4। ठीक। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द हुप। इजी है, देखो ध्यान से। एच मैक्स का रिजल्ट याद है सबको? इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन बन गया है। एच मैक्स का रिजल्ट याद है? एच मैक्स का रिजल्ट याद है? कहाँ गया? यहीं कहीं तो करवाया था ये रहा। चलो उसकी जरूरत नहीं है, एच मैक्स हम ही निकालते हैं। चलो देखो ध्यान से। एच मैक्स 4 होगा, ये समझ में आया क्या सबको? एच मैक्स 4 होगा, ये समझ में आया? एक्स की वेलोसिटी पक्का 5 होगी, ये समझ में आया? क्योंकि उसको ट्रॉली में से प्रोजेक्ट किया, ट्रॉली ऊपर जा रही है, मतलब ये डायरेक्शन हम एक्स पकड़ते हैं ना, तो ट्रॉली एक्स के अलोंग जा रही है 5 से, तो वो एक्स की वेलोसिटी बॉल 5 ले लेगा अपनी। वाई में कुछ तो होगी, वो अभी निकालने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यू वाई नाम दे दिया उसको। ये सारी चीजें क्लियर है। और नेट वेलोसिटी कुछ तो ऐसी होगी उसकी, तो अब वो ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ करेगा और हुक उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। ये भी हमको क्वेश्चन के डेटा से पता चला, लैंग्वेज से। बोलो ये चीज क्लियर हुई क्या? सारी चीजें जो मैंने बताई क्लियर? चलो एच मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से निकालते हैं एच मैक्स। एच मैक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो एस वाई की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 4, वो क्वेश्चन में ही दिख रही है। ठीक है। यू वाई कितना है आपका? सारी वैल्यूज डालो वाई वाली। यू वाई कितना है आपका? यू वाई वही तो मैंने यू वाई माना है। निकालने की कोशिश करेंगे अभी उसको। अच्छा। और क्या अवेलेबल है आपके पास? और क्या अवेलेबल है? हाँ चलो देखो अब ध्यान से। एस वाई 4 हो गया, यू वाई माना है हमने। और क्या क्या है आपके पास? हाँ एक्सिलरेशन जो होगी वो जी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, तो जी का ये कंपोनेंट आपका आएगा जी cos 53। ठीक है। और नीचे वाला आएगा जी साइन 53, मतलब एक्सिलरेशन इन वाई आपको दिखेगा माइनस जी साइन 53 विच इज 4/5। और एक्स की एक्सिलरेशन आपको दिखेगी माइनस जी cos 53 विच इज 3/5। ये सारी चीजें आती हैं। और माइनस क्यों? नेगेटिव एक्स में। बोले ये सारी चीजें आती हैं। ए एक्स और ए वाई मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? अरे बोलो भाई। अच्छा कौन सी इक्वेशन यूज करें? क्योंकि मुझे एस वाई अवेलेबल है, यू वाई मुझे पता नहीं है, ए वाई मेरे को मिल गया है -10 × 4/5 से, मतलब -8 मिल गया है मुझे। और ये मुझे मिल गया -6। कौन सी इक्वेशन यूज करें?
जल्दी बोलो, कुछ और डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन में? आपका जो हुप है वो 4 मीटर हाई है, ठीक है, स्पीड 5 है, हाँ यूएक्स अवेलेबल है, उसका शायद यूज करेंगे। ए वाई कैसे आया, छोड़ दो, रहने दो। 50 बार चीजें नहीं बताई जाती है, 50 बार बता चुका हूं मैं। ए वाई कैसे आया, जी का कंपोनेंट लिया है उधर, ए वाई कैसे आया? तो देखो, सबसे पहली इक्वेशन एस वाई विच इज 4, दैट इज इक्वल टू यू वाई टी। यू वाई कितना होगा आपका, पता नहीं, टी प्लस हाफ ए वाई इज -8 इंटू टी का स्क्वायर। So you will get 4 is equal to UYT minus 4T square। पहली इक्वेशन ये। और कोई मुझे इक्वेशन बता सकता है? कोई और इक्वेशन भी बनती हुई दिख रही है? और डेटा होना चाहिए, कोई तो डेटा होना चाहिए। बस एंगल 37 अवेलेबल है और कुछ पता नहीं है। हाँ, ठीक, बोलो यहाँ तक सही है? ठीक। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी शायद मैं निकाल सकता हूँ इसका, मतलब एक्चुअल में तो ये ऐसा ऐसा मोशन करेगा, इसके बाद ये यहाँ कहीं गिरेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर से आ जाएगा। एस वाई कितना होता है पूरे मोशन के लिए? 0। यू वाई कितना हो जाएगा आपका इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन? पता नहीं, वही यू वाई आपका। टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ ए वाई इज -8, दैट इज -4 इंटू कैपिटल टी स्क्वेयर। बोलो ये भी सही है। यहां से आपका कैपिटल टी आ जाएगा यू वाई बाय 4। बोलो क्लियर, जल्दी बोलो। नहीं उल्टा, हाँ सही है। बोलो सही है यहाँ तक? कैपिटल टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यू वाई की टर्म में। अच्छा, ये वाला टाइम कोई मुझे कैपिटल टी की टर्म में बता सकता है? ये वाला टाइम कौन सा है? T/2। ठीक, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो 4 विल बी इक्वल टू यू वाई इंटू टी विच इज कैपिटल T/2, और कैपिटल T/2 मतलब यू वाई बाय 8 माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर विच इज यू वाई स्क्वायर बाय 8 मतलब 64। सो यू विल गेट 4 is equal to uy square by 8 minus uy square by 16 दिखेगा आपको। So you will get 4 is equal to 16 LCM 2 1, so that is uy square। So from this equation uy will be equal to 8। uy को 8 आप डाल दो इसमें, so total time of flight आपको मिल जाएगा uy by 4 मतलब 2 seconds। तो हुप तक जाने तक जो टाइम लगेगा that will be 1 second। बोलो क्लियर? सबको क्लियर? क्या दिया आंसर? 1 सेकंड दिया क्या? ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is a ball starts falling with zero initial velocity on a smooth inclined plane forming an angle alpha with the horizontal। आपके पास एक inclined plane है, ठीक है, it is making an angle alpha with horizontal, ये mentioned है क्वेश्चन में। So a ball starts falling with zero initial velocity, ठीक, having fallen the distance h, the ball rebound elastically off the inclined plane। At what distance from the impact point will the ball rebound for the second time? देखो ध्यान से, यहां से फॉल करना स्टार्ट किया, u0 था, और कितना हाइट उसने फॉल कर लिया, h हाइट, वो गिरा। किस स्पीड से हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को, पहले वो बताओ सब लोग। रेस्ट से चालू हुआ, एच हाइट गिरा, और गिरने के बाद इंक्लाइन प्लेन को टकराया। किस स्पीड से इंक्लाइन प्लेन को टकराएगा वो बताओ, बच्चों वाली चीज।
जल्दी। वी वाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पूछ रहा हूँ वी वाई की वैल्यू क्या है, वी वाई स्पीड से टकराएगा। एच हाइट गिरते गिरते आपकी बॉल इंक्लाइंड प्लेन को किस स्पीड से टकराएगी? जल्दी बोलो। क्या √2gh से टकराएगी? और ऐसी, क्योंकि वाई में वेलोसिटी होगी उसकी, मतलब ऐसा वाई में, हम ये वाई पकड़ते नहीं है, पर ऊपर से गिरा है तो ऑब्वियसली ऐसी वेलोसिटी होगी √2gh। ये क्लियर हुआ? चलिए, ये एंगल अल्फा, ये 90, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा, और हम एक्स एक्सिस कौन सा पकड़ते हैं? ये वाला। और वाई एक्सिस हम कौन सा पकड़ते हैं? ये वाला। चलो, तो इनिशियल स्पीड को रिजोल्व करते हैं। तो एक कंपोनेंट आपको ये दिख रहा होगा, दैट इज √2gh। ये अल्फा, ये 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा विच इज साइन अल्फा। और ये आपको दिखेगा √2gh cos अल्फा। बोलो, ये दोनों कंपोनेंट्स क्लियर हुए? √2gh वर्टिकली क्यों आएगा? ऊपर से छोड़ा है आपने, खुद सोचो ना, ऊपर से छोड़ा है तो जब इंक्लाइन प्लेन को टकराएगा ऑब्वियसली वेलोसिटी ऐसी होगी उसकी। √2gh कैसे होगी? थर्ड इक्वेशन यूज करो, v² = u² + 2as। u इनिशियली 0, v मुझे चाहिए, s आपका कितना है, h हाइट ट्रेवल किया, और ऑब्वियसली ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा तो a विल बी -g। अरे सब लोग बोला करो भाई, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है तुम्हारी क्लास को पढ़ाने में, बिल्कुल 1% भी। आज आखिरी क्लास ले रहा हूं तुम्हारे बैच की, कल से मैं तुम्हारे बैच की क्लास नहीं लूंगा, ये एकदम फाइनल है। ठीक है, जिससे पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हारी क्लास कल से नहीं लूंगा। आज भी मैं जबरदस्ती लिया हूं, मैं कल से तुम्हारी क्लास नहीं लूंगा। नहीं पढ़ना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे नालायकों को पढ़ाने का। सो ये √2gh साइन अल्फा, इसलिए मैं डिस्कशन भी इसलिए कर रहा हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, नया टीचर करेगा। सो √2gh नीचे आपका है, उसका एक कंपोनेंट आपको दिखेगा ये वाला, दैट इज √2gh cos 90 माइनस अल्फा विच इज साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर नीचे दिखेगा आपको √2gh cos अल्फा। ठीक, तो मुझे एक चीज मिल गई, ux मुझे मिल गया, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, और x एक्सिस हम पॉजिटिव ऊपर पकड़ते हैं तो ये नेगेटिव में आएगा। सो ux विल बी -√2gh साइन अल्फा। ठीक, ax ये सब मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हो गया आपका। कैसे सर? एक्सीलरेशन तो नीचे होगी g पर, मेरे तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए इंक्लाइंड प्लेन पे टकराते ही, ये मैं x पकड़ता हूँ, ये मैं y पकड़ता हूँ, तो g को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो ये वाला आपका आएगा g साइन अल्फा, तो ax मिलेगा आपको -g साइन अल्फा। बहुत बार किया है हमने। अब मुझसे पूछा है कि सेकंड बार जब वो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा तो कितना दूर जाके हिट करेगा। ठीक, कितना दूर जाके हिट करेगा ये उसने पूछा है। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है, ये अगर ऐसा टकराया है √2gh से, तो उतनी उससे रिबाउंड भी करेगा। इसमें इंक्लाइंड कोलिजन का यूज हो रहा है मुझे लग रहा है। उसने पूछा है कि कितना दूर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग चलेगा, पर मुझे लग रहा है इसमें कोलिजन का यूज होने वाला है। चलो देखते हैं एक बार, एस वाई निकालने की कोशिश करें, अभी मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एस वाई पूरे मोशन के लिए होगा 0, यू वाई इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन दैट इज -√2gh cos अल्फा। सो आपकी इक्वेशन बनेगी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई आपको दिखेगा -g cos अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, और यू आई ऐसा नहीं होगा आपका, पता है? हाँ, कोलिजन का यूज हो ही रहा है इसमें, देखो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर तुम्हें थोड़ा सा आता है तो। देखो, टकराया कैसे था? वो टकराया ऐसे था, ऐसा टकराया था। ठीक, तो होता क्या है मैं बता देता हूं आपको, कि ये टकराया आपका √2gh स्पीड से, पर टकराने के बाद जो रिबाउंड करेगा
वो किस वेलोसिटी से करेगा वो थोड़ा ध्यान से समझो। वो आपका रिबाउंड करेगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कोलिजन का यूज हो रहा है वैसे इसमें। सो ये कंपोनेंट आपका कितना आया था, √2gh साइन अल्फा, बराबर। और ये कंपोनेंट कितना आया था, √2gh कोस अल्फा। ठीक। तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ, कोलिजन जब सर पढ़ाएंगे तब उसमें आएगा कि आपका ये जो इम्पैक्ट पॉइंट है, इम्पैक्ट पॉइंट के अलोंग जो डायरेक्शन वेलोसिटी होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। मतलब कोलिजन के बाद अगर आप देखें तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये सेम रहेगी, दैट इज √2gh साइन अल्फा, ये सेम रहेगी आपकी। पर ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेलोसिटी √2gh cos अल्फा, इस पे इंपैक्ट होता है, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ये आपकी ऐसी हो जाएगी √2gh cos अल्फा। इससे ज्यादा कोलिजन का यूज नहीं करना आपको। मतलब ले दे के मैं क्या कह रहा हूं कि फाइनली जो वेलोसिटी है आपकी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी कुछ ऐसी। बोलो क्लियर। तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा और यहां कहीं आपका गिरेगा। बोलो क्लियर। ठीक, बस इतना याद करना है तुम्हें। ये जो हमने वेलोसिटी √2gh लिया है ये टकराने के पहले है, टकराने के बाद आपके ऐसे ऐसी आएगी वो। उस उतने ज्यादा उस पर मत जाओ क्योंकि उसमें कोलिजन का यूज होगा। मतलब मान के चलो कि आपका जो टकराने के बाद थे वो सारे कंपोनेंट्स आपके ऐसे होंगे, बस इतना याद रखो कि सर टकराने से पहले ये √2gh साइन अल्फा था ऐसा नेगेटिव एक्स की तरफ, टकराने के बाद भी यही रहेगा कितना, √2gh साइन अल्फा, बस इतना याद करो। और टकराने के पहले नीचे की तरफ मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना था, √2gh cos अल्फा। अब टकराने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएगा ये कंपोनेंट, बस ये डिटेल में आप पढ़ेंगे कोलिजन में। सो ये हो जाएगा √2gh cos अल्फा ऊपर की तरफ। सो बेसिकली मैंने जो ux लिखा है वो एकदम सही लिखा, पर uy जो होगा वो टकराने के बाद का चाहिए ना मुझे, तो वो प्लस में आएगा, मतलब ये प्लस में आएगा। ये चीज समझ में आई। uy जो मैंने माइनस में लिया था ना √2gh cos अल्फा, वो टकराने के पहले था, पर मुझे तो टकराने के बाद का चाहिए ना, तो रिबाउंड होने की वजह से वो प्लस में आएगा, कोलिजन की वजह से, वो आप बाद में पढ़ोगे। सो t से t कैंसिल, सो यहां से आपको t मिलेगा 2√2gh cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। cos अल्फा से cos अल्फा गया, सो कैपिटल T आपको मिलेगा 2√2h बाय g। ठीक, अब ये आ गया टोटल टाइम। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो आपका है ये कहाँ हिट किया, मतलब Sx चाहिए मुझे। तो Sx कितना हो जाएगा सर, वो तो सिंपल है, uxt t टाइप कैपिटल T प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब वैल्यूज डालते हैं। सो ux इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन दैट इज -√2gh साइन अल्फा। कैपिटल T वो मेरा अभी अभी आया ट्वाइस ऑफ √2h बाय g प्लस हाफ ax आया -g साइन अल्फा, सो दिस विल बी -हाफ g साइन अल्फा। कैपिटल T का स्क्वायर वो आपको दिख रहा होगा 4 × 2h बाय g। सो 2 से 2 गया, g से g गया, इधर भी देखते हैं कुछ तो जाएगा, g से g गया। सो ये आपको दिख रहा होगा 2 × 2 -4 √h × √h h साइन अल्फा माइनस, और ये भी आपको दिख रहा होगा 4h साइन अल्फा। सो ओवरऑल Sx आपको आ गया -8h साइन अल्फा। और माइनस आना ही चाहिए क्योंकि x में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव की तरफ दिख रही है, ये दिख रही है मुझे Sx। फुल क्लियर। आंसर एक बार चेक करो, यही भी है क्या, रुको मैं चेक करता। एक्सरसाइज 2 में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 8h साइन अल्फा प्लस दिया है, मतलब वो तो डिस्टेंस पूछा है ना उसने। मैं बता रहा हूँ माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रहा हूँ। फाइनल आंसर तो आप प्लस में लिखेंगे ना, डिस्टेंस है ना वो तो। बोलो समझे। 12th हो गया, 15 मिनट है, 12th हो गया। अरे 12th बचा है भाई, हुआ कि नहीं। ये मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ना, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, ये सब ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज 2 हार्ड है, वो हर चैप्टर की हार्ड है, सिर्फ आप काइनेमेटिक्स मत देखो,
आगे का चैप्टर आएगा एनएलएम, वो उसमें भी हार्ड मिलेगा, है ना। फ्रिक्शन आएगा वहां भी हार्ड, एक्सरसाइज टू हार्ड है, वहीं तो आपका पता चलेगा आप कितना दिमाग लगा पाते हैं, कितना आप चीजें सीखे हैं। थोड़ा टाइम दो अपने आप को, ठीक है, सब होगा। क्या पूछा है, क्या मुझे मिला है, वो सारी चीजें सीखो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई इतना आसान नहीं है, पर पूरा इंडिया ऑनलाइन कर रहा है और पूरा इंडिया अच्छा भी करता है, ठीक है। अब तुम लोग अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है ऑनलाइन में, बल्कि लोग और अच्छा करते हैं, घर पे टाइम मिलता है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होता है एकेडमी आने का, एकेडमी जाने का। वैसे ऑफलाइन से तो अच्छा ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता, ये तो अच्छा सबको पता है, टीचर्स इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन में। पर ऑनलाइन में आपका एक, अगर आप पॉजिटिव चीज देखो तो आपका टाइम वेस्ट कम होता है, ठीक है। क्लासेस का टाइम फिक्स होता है, बस उतना घर पे पढ़ा, उसके बाद खुद से पढ़ा, तो उसमें मार्क्स भी आता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो मार्क्स किसी के नहीं आएंगे। इस बार पेपर इजी था वैसे तो, जेई मेन का, पर मार्क्स बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मतलब पूरा इंडिया पढ़ाई कर रहा है। अब उसमें तुम लोग नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, बाकी लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना दिमाग लगाओ, वो करो, ठीक है। 12th हुआ, बाकी तो आप खुद की इच्छा है, आप कितने समझदार हो। पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। 12th, एक क्वेश्चन बचा है, वो भी हुआ कि नहीं करवाऊं? अरे 12th हुआ, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हो तो मैं क्या मतलब, क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हारे बैच को? ट्वेल्थ किसी ने डाउट तो नहीं लिखवाया? लिखवाया है? चलो 12th देखो। A stone is projected horizontally with speed v from a height h above the ground. A horizontal wind is blowing in direction opposite to velocity of projection and gives the stone a constant horizontal acceleration f in direction opposite to the initial velocity. As a result, the stone falls on the ground at a point vertically below the point of projection. Then find the value of height h in terms of f g v. बहुत अच्छा सवाल है। पता है क्या हो रहा है? कुछ ऐसा सीन हो रहा है, ध्यान से समझना। लेट से दिस इज हाइट, कुछ तो दी हुई है कि निकालनी है। हाँ, एच हाइट दी हुई है, और पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड भी। अभी तक क्या हमारे पास एक्स में एक्सेलेरेशन होती थी? हाँ या ना? नहीं। तो अभी तक जो पाथ फॉलो करता था वो ऐसा पाथ फॉलो करता था पार्टिकल, सही है। पर अब एक्स में एक विंड होने की वजह से एक एक्सिलरेशन है एक्स में, ठीक है। और किधर है विंड आपकी? वो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्या आपकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होने की वजह से एक्स की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होगी? यस और नो? यस। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से लास्ट लाइन जो आपको दिया है उससे पता है कैसा पाथ समझ में आ रहा है मुझे? ये पाथ समझ में आ रहा है, ये वाला, ये वर्टिकली बिलो वाले पॉइंट से ही आपका पास हो गया ये। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर। तो पूरे मोशन के लिए एस एक्स कितना है? जल्दी बोलो, पूरे मोशन के लिए एस एक्स कितना है? ए से बी मोशन हो रहा है, एस एक्स कितना है? 0। पूरे मोशन के लिए एस वाई कितना है? क्या वो तो माइनस एच है? जल्दी बोलते जाओ। सही है। पूरे मोशन में यू एक्स कितना है? इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन v दिख रहा है। यू आई कितना है? इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। ए एक्स कितना है पूरे मोशन में? माइनस एफ दिख रहा है। ए एक्स माइनस एफ दिख रहा है। अरे
ठीक है, ए एक्स कितना है माइनस एफ, वो क्वेश्चन में नहीं माइनस क्यों लिया वो समझ में आया, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ए वाई कितना है सर, वो तो मुझे पता है, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन माइनस जी होती है। बोलो ये सारी वैल्यूज क्लियर। ठीक, तो सबसे पहली इक्वेशन पूरे मोशन के लिए लिखते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरे मोशन के लिए लिख रहा हूँ। तो एस वाई इज माइनस एच, यू वाई जीरो, हाफ ए वाई कितना है माइनस जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। सो यू विल गेट एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन वन निकालना क्या है, सो यू हैव टू फाइंड एच इन टर्म्स ऑफ एफ जी एंड वी, मतलब कैपिटल टी एलिमिनेट करना है। वो कहाँ से होगा, पूरे मोशन के लिए एस एक्स लगा दो। सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अभी तक एस एक्स हमें रेंज देता था, पर इस क्वेश्चन में एस एक्स है ही नहीं, क्योंकि वो वापस वहीं से जा रहा है। सो एस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन वी, कैपिटल टी, हाफ ए एक्स दैट इज माइनस हाफ कैपिटल एफ इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब टी सोल्व करना है, तो यहां से मैं क्या बोल दूं, टी टी कॉमन आया तो टी आपको दिखेगा 2v/f, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को, डाल दो इसमें। सो एच आपका हो जाएगा हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर विच इज 4v² / f², सो दैट इज इक्वल टू 2gv² / f²। बोलो क्लियर। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव जल्दी बोलो, 13 क्वेश्चंस, 10 मिनट है, जितना भी होगा होगा, बाकी जो सर आएंगे उनको बोल देना, वो करवाएंगे। बोलो पार्ट 2। 1 to 5 में कोई, पार्ट 2 में 1 to 5 में कोई, कोई डाउट नहीं किसी को। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी दूसरे सर को बोलना रहने दो। एक एक जन के पूछने से क्या होता है, 90 लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं करता, कुछ सीरियस नहीं है, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं है, जो करना है करो, इतना गुस्सा मुझसे नहीं होगा अब। ठीक है, आज आखिरी क्लास है आपकी, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, दूसरे सर आएंगे वही क्लास लेंगे, मैं क्लास नहीं लूंगा आपसे। ठीक है, चलो।